हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर निम्रा and in my bilingual review series I have come up with another product. As you can see, I'm holding it in my hand. It's IDEF intensive rejuvenating system with 10% arginine, which is basically known as non-invasive Botox for skin, face, eyes. It is an intensive eye rejuvenating system, age-defying cosmetic skin treatment, and which is claimed to be an intensive treatment. Basically, I'm recommending this product or reviewing this product because it is dermatologically tested and it's backed up by clinical data and trials and RCTs. So, oh, I'm sorry, I lost my earring. So, one by one, we're going to start the benefits and we'll go into the detail of this age defying eye serum, which is actually a medical grade serum. It is very intensive, so you have to use it on recommendation of a doctor, and it's going to give you drastic results. A lot of people ask me, have you undergone blepharectomy or what? Or especially those who know my age. But the fact is that actually being in the field helps me being exposed to a lot of things which are actually working and not marketed like cosmetic grade products, like engaging famous bloggers in their advertisement, but delivering uh, good quality based medical grade ingredients um, in their products. Okay, सो स्टार्ट करते हैं इसको। हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में करेंगे बिकॉज बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि मेरा जो है वो अंग्रेज़ी किसी को समझ नहीं आती है। बिकॉज आपको पता है कि मैं नेटिव इंग्लिश नहीं हूँ, तो मेरी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो I'm sorry, I had to wear my ear cuff again. So this is Dr. Nimra Fatma Azam, and today I'm reviewing a dermatologist recommended product. What is a dermatologist recommended product? A dermatologist is a person who has the highest highest knowledge of your skin, right? He's the one who is the most professional about your skin. There's no one in the world you can find who knows the betterment of your skin more than him. So it is a dermatologist recommended product, this intensive eye serum, right? मैं इसको ऐसे ही साथ रख लेती हूँ, ठीक है? It's the dermatologist recommended product. iDef intensive eye rejuvenating serum. If you struggle with dark circles, puffiness, or fine lines around the eyes, this video is actually for you. And I was the one who was suffering from all these disorders from a lot of years, especially since final year, because आप सब जानते हो, जो लोग डॉक्टर्स हो गया, जिसके बहन भाई डॉक्टर, जिसके घर में कोई डॉक्टर है, कि फाइनल ईयर में हम लोग की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है यार, पढ़ के बहुत ही बुरा हशर हुआ होता है। ठीक है, तो आज हम रिव्यू करेंगे एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट को, जिसका नाम आपको अभी तक ज़बानी याद हो चुका होगा। आईडिफ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इंटेंसिव आई रिजुविनेटिंग सीरम है, और इसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। एक डर्मेटोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जिसने 5 साल के MBBS के बाद 5 साल की स्पेशलाइजेशन करके जल्द की ऊपर मुकम्मल कमांड हासिल कर ली होती है, और हज़ारों जो बीमारी है उनको पढ़ लिया होता है। उससे ज़्यादा नॉलेज जल्द का किसी को नहीं होता, और जिस चीज़ को वो रिकमेंड कर दे किसी मसले के हल के लिए, उससे बेहतर रिकमेंडेशन किसी ब्लॉगर, किसी एक्टर, किसी मॉडल, किसी फ्लैशी जो है एडवर्टीज़मेंट से आपको नहीं मिल सकती है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं आपको उससे मिलते हैं। तो अगर आपको आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स हैं, पफिनेस है, झुर्रियाँ हैं,
तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट है। इट इज़ अ रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बिकॉज़ इट्स अ मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट। ये कोई कॉस्मेटिक ग्रेड प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर हमने 1% आर्जिनिन डाल दिया तो हमने लिख दिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त आई सीरम है, इसको लगाओ, और 6 महीने लगाया और कोई रिज़ल्ट ना आया। और कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइस के ऊपर जज करते हैं बिकॉज़ ये बहुत सस्ता है। इट्स जस्ट फॉर 1980 रुपीज़, 1980 रुपये का, एंड लास्ट फॉर अराउंड 6 मंथ्स। ठीक है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर जज करते हैं और कहते हैं ओह इतनी सस्ती दवाई तो इट मस्ट नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट होती हैं, और जो कॉस्मेटिक ग्रेड प्रोडक्ट्स होती है जो आप जाकर खरीदते हो बड़े बड़े स्टोर से, जो आपको ज़ीरो रिजल्ट्स देती हैं, वो उनके जो ओनर्स होते हैं, कंपनी ओनर्स, उनके अपने पास अपने प्राइवेट जेट्स और पता नहीं क्या क्या होता है। तो डॉक्टरी में और कॉस्मेटोलॉजी में फ़र्क ये है कि हमने आपकी बीमारी का इलाज करना है, चाहे दवाई सस्ती है महंगी, हमने सही दवाई लिख के देनी है। और उधर जो है आपको उन्होंने एक प्रोडक्ट सेल करनी है जिसको महंगा और अच्छा दिखाना है, जिसमें उन्होंने मशहूर मॉडल एक्टर जो इंगेज किया है उसको उसकी जो बिलिंग है वो भी आपसे वसूल करनी है। ठीक है? सो दिस सीरम इज स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर क्रोस फीट। क्रोस फीट क्या होता है? कौवे के पाँव कैसे होते हैं? इस तरह से होता है कि ये जो 3 लाइनें जब आप हँसते हो तो पड़ती है, ये मेरे इतने ख़ास नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? लेकिन जैसे पठान लोग होता है आप उसको देखते हो, वो हँसते हैं यहाँ पे ऐसे 3 लाइन पड़ती है, दिस इज़ नोन एज़ क्रोस फीट। उसके लिए ख़ास तौर से है। और एक्सप्रेशन रिंकल्स को हम डायनामिक रिंकल्स भी कहते हैं। जैसे आईब्रोज ऊपर करें तो फोरहेड पे लाइंस, गुस्सा करें तो फ्राउन लाइंस पड़ी है, और डाउनवर्ड फेस टर्निंग करें, स्माइल करें, ये सब ठीक है, ये एक्सप्रेशन लाइंस के लिए होती है। एक्सप्रेशन रिंकल्स फॉर्मिंग द आई एरिया अबव एंड बिलो। अच्छा, आंखों के ऊपर और नीचे भी रिंकल्स पड़े होते हैं, ये आप देख रहे हो, जिसकी खास तौर से नज़र कमज़ोर होती है वो फोकस करने के लिए बार बार आई को स्क्वीज़ करते हैं, तो आंखों के ऊपर और नीचे जो होते हैं वो ये रिंकल्स भी ठीक करता है और स्किन को फर्म करता है, बड़ी स्किन होती है, रिड्यूसिंग द डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस। डार्क सर्कल्स 99% अवाम का प्रॉब्लम है एक्सेप्ट फॉर मी, और पफिनेस not 99% but a lot of people are suffering from it. It makes your eye look smaller as well. It's meant for external use only and should be applied twice daily. आपने अपनी उंगली पर थोड़े से लगा के इसको अपनी आँख के ऊपर और नीचे ऐसे पूरा आँख बंद करके ऐसे पूरा ऐसे यूँ लगा लेना है। ठीक है? दिन में 2 दफ़ा लगा लें तो ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। ठीक है? अच्छा जी, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, क्योंकि सबने बोला कि अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही, गलत बोलते हैं। तो जो ये सीरम है ये ख़ास तौर पर बनाया गया है आँखों के किनारों की झुर्रियों के लिए, और इसके ऊपर और नीचे के एरिया को टाइट करने के लिए, सैगिनेस को कम करने के लिए, डार्क सर्कल्स को और सोजन को कम करने के लिए। और दिन में आपने इसको 2 बार इस्तेमाल करना है हिदायत के मुताबिक। हिदायत मैंने आपको बता दी, आपने अपनी उँगली पे 1 कतरा लिया और उसको अपनी जैसे कोई भी क्रीम या सुबह चेहरा धोते पूरी आँखों के ऊपर और नीचे आँखें बंद करके पूरा इस तरह, ठीक है? अच्छी तरह इसको आपने मसाज किया तो ये सारा जो होता है जज़्ब हो जाता है। क्योंकि 1 to 2 ड्रॉप्स यूज़ होता है डेली, तो इसी वजह से ये जो क्वांटिटी है इसकी 20 ml, ये 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स तक लास्ट कर जाती है डिपेंडिंग अपॉन द विजिलेंस एंड पंक्चुअलिटी of the patient and if the product is not wasted. की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आ जाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हम इसको बोल दें कि इसमें आखिर ऐसा क्या डला है जिससे जो है इतना रिज़ल्ट ज़बरदस्त आ रहा है और हम इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड कर रहे हैं, और इतने बड़े जो क्लेम्स दावे हैं वो प्रूव भी हुए हैं हमारे आरसीटीज़ में, हमारे ट्रायल्स में। वो क्या चीज़ है? नंबर 1 इज़ 10% arginine. 10% is quite a percentage. This is a lot. ठीक है? इतनी ज़्यादा arginine I don't think so पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट है जो डिलीवर कर रही है। It is a star ingredient which is known as borax like peptide, यानी कि एक ऐसा पेप्टाइड है जिसको
जाना जाता है दुनिया में एज बोरॉक्स लाइक peptide, right? It helps reduce facial muscle, relax facial muscles. No, I'm sorry, it doesn't atrophy or reduce the facial muscle. It relaxes facial muscles. It reduces expression lines. It is clinically shown to reduce wrinkles, especially around the eyes. ठीक है, तो इसने फेशियल मसल्स को, ये देखो मेरे फेशियल मसल्स मैंने फुली कॉन्ट्रैक्ट किए थे, इनको रिलैक्स किया, जिसकी वजह से रिंकल लाइन जो थी वो कम हो गई। ठीक है, और स्पेशली ख़ास तौर से ये स्पेशली आइज़ के लिए जो है इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, 10% कॉन्सेंट्रेशन, क्या फ़ायदा हुआ हमें 10% एल आर्जिनिन का? वैसे भी तो आर्जिनिन इतनी चीज़ों पे लिखा होता है, यूज़ करते हैं, तो फिर क्यों लोगों के रिंकल्स ख़त्म नहीं होते? बिकॉज वी यूज 10% कॉन्सेंट्रेशन. It's quite potent as compared to many other serums. Um, it is great for people with early aging signs and fine lines. People like me who have hypothyroidism, or who have glycation due to having very high carb diet. They don't take proteins much. They don't or their metabolism is low. Collagen breakdown is more as compared to collagen building, or people who don't use sunblocks, uh, prone to UVA rays that cause DNA damage and ultimately reduce collagen levels in the skin. तो इन लोगों में प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, राइट? तो इसमें अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, लाइक अगर उम्र 25 साल होगी तो वो 35 साल दिखेगी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए L-arginine 10% is an excellent choice. It will reverse that premature aging, and it will gradually lead to your biological age. Secondly, hyaluronic acid. Hyaluronic acid, as everyone knows, is a humectant tool, causes deep hydration. It plumps the skin. It reduces dryness, lines, and the depth of the lines. अगर lines की depth कम होगी तो lines की appearance भी automatically कम हो जाएगी plumpiness की वजह से। ठीक है, thirdly, it contains aloe vera gel, which is soothing, anti-inflammatory, and it helps calm irritated skin. इरिटेशन आंखों पे इतनी ज़्यादा होती है ना हमारे, हमें पता नहीं होता। अगर हम 3-4 दिन एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स यूज़ करें तो हमें पता चलता है हमारी आंखें खुल के कितनी बड़ी हो गई हैं। तो जो एलोवेरा जेल है ये अच्छे आई ड्रॉप्स में भी यूज़ होती है, और इसका ये मतलब नहीं है कि साइड सीरम को आप आँख के अंदर लगाएं, मगर इट इज़ नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़। तो ये आपकी सोजिश को कम करेगी, आपकी आंखें खुल के बड़ी भी होंगी, रेडनेस भी कम होगी। ठीक है, इसके अलावा कोलेजन, इट improves skin elasticity and gives a firmer appearance. आपको पता है कोलेजन इलास्टिसिटी इंप्रूव करने का मतलब होता है स्किन को और टाइट करना, और ज़्यादा इलास्टिसिटी इंप्रूव करने का मतलब स्किन को लूज़ करना नहीं होता, स्किन को जो है मज़ीद टाइट करना होता है। ठीक है, विटामिन के है इसमें, जो कि मुझे बड़ी हैरत हुई पढ़ के कि विटामिन के इन्होंने ऐड किया। इट हेल्प्स रिड्यूस डार्क सर्कल्स एंड इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है जी, विटामिन के ने माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव कर दी और साथ में डार्क सर्कल्स को कम कर दिया, ख़ास तौर से जो ब्लू इश्यू दे रहे थे। अच्छा, ये मैंने पहली बार पढ़ा और सुना है। और ऐसी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इस वक्त मार्केट में जिसमें विटामिन के ऑलरेडी एडेड हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है पीच एक्सट्रैक्ट, जिसका अगर आप मुझसे साइंटिफिक नेम पूछे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। इट इज़ प्रूनस persica peach extract. It is rich in antioxidants and it supports skin repair. ठीक है, जो हमारी स्किन डैमेजेस हो गए, सॉरी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया था, इसलिए एकदम से मैं कट करना पड़ा। तो हम पीच एक्सट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि पीच एक्सट्रैक्ट जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो स्किन रिपेयर जो है उसको एड करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी लोड होता है जिस भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स है इन्फ्लेमेटरी लोड को वो कम करेगा। अदर ingredients include preservatives, parabens, phenoxyethanol, and sensitive skin users should do a patch test before use. ठीक है, मतलब अगर आपको अपनी एलर्जीज़ का पता है
आपको पैराबेन से एलर्जी है, आपको किसी प्रिजर्वेटिव से एलर्जी है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको अपनी किसी एलर्जी का नहीं पता है तो फिर आप एक पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट कहाँ पे होता है? पैच टेस्ट हम बिहाइंड द ईयर करते हैं, ठीक है। ऐसे हम थोड़े से पैच टेस्ट करके हम देखते हैं विद इन 24 आवर्स हमें कोई रिएक्शन तो नहीं आया। अगर कोई रिएक्शन आया, थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन, देन यू कैन गो विद यूजिंग द प्रोडक्ट इन द लॉन्ग रन एज वेल, राइट। अच्छा जी, अब इन सब जो चीज़ें हमने एल आर्जिनिन पढ़ा 10%, ये वो सारा कुछ, इसको थोड़ा सा उर्दू में भी देख लेते हैं। तो आर्जिनिन जो 10% है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका वैसे बोलते हैं कि बोरॉक्स जैसा पेप्टाइड है। पेप्टाइड क्या होता है कि प्रोटीन के, इट्स पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हम ऊपर लगाएं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हमारी स्किन से, मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है। हम अमाइनो एसिड्स या पेप्टाइड्स को टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेप्टाइड्स हैं, जो 10% आर्जिनिन है, इसको बोटॉक्स पेप्टाइड, नॉर्मली इट इज़ नोन फॉर इट्स बोटॉक्स लाइक एबिलिटी टू रिड्यूस रिंकल्स। ये चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करता है। मसल्स, चेहरे के ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये फेशियल मसल्स मूवमेंट करें, और अगर ये रिलैक्स होंगे तो ये मूवमेंट्स नहीं होंगी, और जब ये मूवमेंट्स नहीं होंगी तो ये रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, ये वाले क्रोज फीट नहीं पड़ेंगे, ये वह सब रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, और झुर्रियाँ कम करने में मदद देता है। और 10% जो क्वांटिटी जिसके ऊपर हमने पहले अंग्रेज़ी में बात की, ये काफ़ी मौसर है, समझी जाती है, ख़ास तौर से फाइन लाइंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक चीज़ होती है फाइन लाइन और एक चीज़ होती है कोर्स रिंकल्स। कोर्स रिंकल्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, ऐसे इतने बड़े बड़े हंस रहे तो यहाँ से यहाँ लाइन पड़ी है, दैट आर कोर्स रिंकल्स। और फाइन लाइन्स होती है बड़ी बड़ी छोटी छोटी लाइन्स। फाइन लाइन्स के लिए इफेक्टिव है। इट इज़ नॉट अ सोल थेरेपी फॉर कोर्स रिंकल्स। इट मे reduce their depth or their intensity, but it's not going to treat them fully. सेकेंडली, हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हमने अंग्रेज़ी में बात की। तो ये जल्द को हाइड्रेट करता है, यानी कि पानी को जल्द के अंदर पानी के लेवल से बढ़ा देता है, और जल्द को ऐसे प्लम भरा हुआ और जो होता है नरम कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एलोवेरा। एलोवेरा जो है ये जल्द को एक सुकून सा पहुंचा देता है, आपको एक फीलिंग ऑफ सुकून को क्या कहना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और सोजिश को कम कर देता है। सोजिश के अंदर स्वेलिंग, रेडनेस, एडीमा, पेन, इरिटेशन, लैक ऑफ फंक्शन, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। इसमें कोलेजन भी है जो जल्द को टाइट और मजबूत बनाता है, थिक करता है। मर्दाना जल्द होना शुरू नहीं हो जाएगी, मगर जो ओवर थिनिंग हुई हुई है, जो बहुत बड़ी स्किन है, जो है फिर वो प्रोन टू इंजरी भी ज़्यादा है, प्रोन टू पिगमेंटेशन भी ज़्यादा है, प्रोन टू फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी ज़्यादा है, वो ख़त्म हो, आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। विटामिन के जो है वो डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है। अब हमने देखना है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है आईडिफ इंटेंसिव रिजुविनेटिंग सिस्टम, जो कि डर्मेटोलॉजिकली प्रोवन है और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड भी है, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। Take a couple of drops. A couple of drops is the maximum quantity that you can use in a day. You can even use one drop at a time, ठीक है। Take a couple of drops on your fingertip, ठीक है। कतरा लिया अपने फिंगर टिप के ऊपर, और उसी फिंगर टिप से जेंटली पैट फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज आउटवर्ड। ये देखें, इस तरह जैसे आईशेड लगाते खवातीन को ज़्यादा आइडिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे आंखों के नीचे, आंखें बंद की हुई है ना, तो नीचे से भी ऐसे ऐसे आपने इसको पैड किया, ठीक है। इतना नहीं दबाना कि इंजरी हो जाए, ठीक है। आपने पैड किया। पैड क्यों किया? पैड जो है, पैटिंग जो है वो मैक्सिमाइज करती है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। जेंटली पैड फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज आउटवर्ड्स, अप्लाई अंडर आइज एज वेल एंड अंडर द ब्रोज एज वेल, यानी कि अपर एंड लोअर आईलेट दोनों पे करना है। आँख के ऊपर ले, निचले, इससे पूरी आई को रिजुविनेट करना है आपने। ये नहीं कि सिर्फ इधर कर लिया या सिर्फ क्रोज फीट पे कर लिया। आईब्रो से लेकर अंडर आई तक पूरा एरिया आपने जो है कवर करना है, ठीक है। ट्वाइस डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। देखिए, अब आप एक चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम रिजल्ट्स होते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट्स या बेस्ट रिजल्ट्स
तो उसको अचीव करने के लिए आप इसको फिर ट्वाइस डेली यूज़ करें तो अच्छा है, अपने बैग में रख लें। ये अल्कोहल बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं, आपकी आँख के अंदर नहीं जाएगा और अगर फ़ैन चला हुआ है तो ड्राई हो जाता है फ़ौरन से। ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पे कुछ एज ए मडी ग्रीजी फीलिंग है जिसकी वजह से आप ऑफिस नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते। अगर आप ऑफिस स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप अपने ब्रेक टाइम में या अगर आप दोपहर को जल्दी घर वापस आ जाते हैं तो आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको उर्दू में मैं रिपीट करती हूँ कि आपने इसको उंगली पे 1 से 2 कतरे लिए और नाक के करीब के से बाहर की तरफ अपने हल्के हाथ से लगाते जाएं। आँख के नीचे भी लगाएं और आईब्रो के नीचे भी लगाएं। ये आँख का निचला हिस्सा है और ये आईब्रो का निचला हिस्सा है, ठीक है। पूरा का पूरा लगाएं, ठीक है। और दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, ठीक है। एक बार सुबह कर लें, एक बार दोपहर कर लें, या एक बार दोपहर और एक बार रात कर लें। अच्छा जी, अब कोई तो प्रिकॉशंस होंगी ना, मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो प्रिकॉशंस होंगी। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि आँख के अंदर ना जाए और डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज। इसके लिए अगर आपका फ़ैन फुल पे चला हुआ है और तब आप लगाते हो तो ये इमीडिएटली ड्राई हो जाता है। दूसरा, क्वांटिटी को कंट्रोल रखिए। इट शुड बी 1 ड्रॉप और अ कपल ऑफ ड्रॉप्स, नॉट अ लॉट ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो क्वांटिटी कंट्रोल करें। और दूसरा ये है कि एटमॉस्फेयर में आपका जो है वो एरी हो ताकि वो फ़ौरन से ड्राई हो जाए। इफ़ कॉन्टेक्ट occurs, rinse thoroughly and store below 30 degrees Celsius. Keep away from children. Protect from sunlight. These were general instructions that you'll find on all of the skincare products, ठीक है। और उर्दू में भी इसका रिवाइज कर लें कि एहतियाती तदबीर हमारे पास क्या क्या है। आंखों में जाने से बचाएं और अगर चला जाए तो फौरी तौर से इसको पानी से अपने चेहरे को धोएं। और दूसरी बात यह है कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के ऊपर रखें। और चौथी बात यह है कि बच्चों से इसको दूर रखें। और ये आंखों के अंदर लगाने की चीज़ नहीं है, ये आंखों के ऊपर लगाने की, आईब्रो के नीचे से लेके आंखों के नीचे तक लगाने की चीज़ है। पूरे चेहरे पे भी लगा लें तो कोई नुकसान नहीं है। थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स कर लेते हैं, यानी कि बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। बेनिफिट्स ये हैं कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड जो हमारे पास है अर्जिलीन 10%। वो हाइड्रेटिंग भी है, एंटी एजिंग भी है, कॉम्बिनेशन में है। तो वी गेट टू टारगेट मल्टीपल कंसर्न्स, ठीक है। हमारे बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो गए। कौन सी है? कंटेन्स पैराबेन्स which results टेक टाइम नॉट इंस्टेंट। पैराबैन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, पैराबैन को कुछ लोग यूज़ करना अच्छा नहीं समझते, कुछ लोगों के लिए वो इरिटेंट्स हैं। और दूसरा ये होता है कि इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म यूज़ से रिजल्ट्स आते हैं, ओवरनाइट कोई स्टीरॉयड नहीं है कि कोई ड्रास्टिक ओवरनाइट जो है कुछ वो आ जाए, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो कोर्स रिंकल्स और डायनामिक रिंकल्स के लिए है, ये फाइन लाइंस और डायनामिक फाइन लाइंस के लिए इसको कह सकते हैं, बट नॉट फॉर कोर्स रिंकल्स, ठीक है। तो फ़ायदे यही हो गए कि ताकतवर एक एंटी एजिंग जो और इसका नमी और टाइटनिंग के दोनों फ़राहम करता है। और नुकसान ये हो गया कि इसके अंदर थोड़े से पैराबेन्स हैं, उसकी मौजूदगी कुछ लोगों के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। और ये जो रिज़ल्ट्स अपने देता है ये ओवर टाइम देता है। ये कोई स्टेरॉइड या कोई इसमें कोई घटिया चीज़ एडेड नहीं है जो ऊपर से कुछ छील देगी, ख़राब कर देगी, या कुछ हम इंजेक्ट नहीं करें जो हमें फ़ौरन रिज़ल्ट दे दे, ठीक है। तो हम एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड बजट फ्रेंडली आई सीरम। बजट फ्रेंडली तो ये बहुत होता है, मैंने कभी इतना सस्ता आई सीरम नहीं देखा जिसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा हो, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स भी इतनी ज़्यादा हो। With a strong focus on anti-aging, especially due to arginine 10%, ठीक है। अच्छा जी, I would recommend it for early wrinkles, mild dark circles and daily eye care routine. अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको रिंकल्स आना शुरू हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स आना शुरू हो रहे हैं, और अगर नहीं भी आ रहे तो फिर भी आप इसको रोज़ लगा सकते हो ताकि ना आए, क्योंकि अगर आ गए तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो लाखों रुपए कॉस्ट करता है।
तो आप इसको अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लो। सुबह उठ के जब चेहरा धोते हो, उसके बाद आप जो है सन ब्लॉक लगाने से पहले अपना आई सीरम लगा लो, उसके बाद आप ऊपर अपना सन ब्लॉक लगा लो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो था ये पूरा रिव्यू जो था, आज हमने रिव्यू सीरीज़ बहुत अरसे बाद की है, तो हमारा ये रिव्यू जो था ये पूरा ख़त्म हुआ। मैंने आपको बताया था मैं बहुत सख्त बीमार थी। आई हैव अंडरवेंट अ सर्जरी ड्यूरिंग रमज़ान, और इट वाज़ अ फेस सर्जरी है जिसके देखिए स्कार मार्क्स अभी मौजूद हैं। तो and I was very busy, so I couldn't connect to you guys, and I apologize for being absent for so long. बट इंशाल्लाह ताला अब हमारी तकरीबन रोज़ मुलाकात होती रहेगी, और हम जो है इसी तरह रोज़ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप किस चीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं, आप किस चीज़ के बारे में इंक्विजिटिव हैं, और आपका क्या स्किन केयर इशू है जिसका सलूशन नहीं मिल रहा। यू हैव ट्राइड मल्टीपल थेरेपीज़ मगर रेजिस्टेंट है, तो वील ट्राई टू फिगर आउट वेज़। हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया में ऐसे सॉल्यूशंस को ढूँढ सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ ऑन आवर फिंगर टिप्स विद इंटरनेट, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही आता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर अब कल मुलाकात होगी। कल जो हमारी कल जो हमारी प्रोडक्ट है जो हमने रिव्यू करनी है, वो ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज़ इट इज़ अ मेडिकल ग्रेड ब्लीचिंग एजेंट। बेसिकली इट इज़ नॉट अ ब्लीच, मगर उसका साइड इफ़ेक्ट ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कलर को ख़त्म कर देना, यानी कि जब आप किसी कपड़े के ऊपर ब्लीच डालते हो, आप देखते हो वहाँ से उसका कलर ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो जो हमारी प्रोडक्ट है कल की, वो एक मेडिकल ग्रेड जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, और वो अब हम इंशाल्लाह कल ही रिवील करेंगे वो क्या है। ऑल्दो वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ नहीं होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट ब्लीचिंग है, बट पीपल यूज़ इट दैट वे एंड दे बिकम चॉक वाइट। जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि काश हम सफ़ेद हो जाएँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है? ये मत समझिएगा कि आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड दैट्स गोइंग टू कॉज़ स्किन थिनिंग और समथिंग। सो अब आप मुझे इजाज़त दें। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा फ़ातिमा आज़म है, और जो चीज़ भी आप मेरे चैनल पे जो कंटेंट सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।